Dear student, today I am starting the another topics of the same chapter, sexual reproduction in flowering plant. Today we discuss about the fertilization, endosperm and seed. Before starting the fertilization, that I am going to explain the structure of carpel or female gametophyte. The carpel has three parts: stigma, style and ovary. Three parts हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है. स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म or an umbrella shaped structure where the pollen grains are settled down. The pollen grains reach to here after pollination. Pollination से pollen grain यहाँ पहुंच जाते हैं. Whatever the agency they used. Now, between the stigma and the ovary, there present a tube-like structure or elongated tube-like structure, which is called style. Through the style, pollen tube is descended from the pollen grain, and the lower basal part, which is dilated part, it is called ovary. It is called ovary. Inside the ovary present ovule, and in ovule present the 7 celled stage. 8 nuclei होती हैं and they make the 7 celled stage. Out of them 3 are antipodal, which are towards the chalaza. जो chalaza side की है. 3 cells, antipodal cells. Each antipodal cell is haploid. In the center present the polar nuclei or secondary nucleus. This polar nuclei or secondary nucleus is made up of 2 nuclei. When 2 nuclei are fused, then they make a diploid structure which is called polar nuclei or secondary nucleus. Now, towards the micropyle side, जो micropyle की side है, there present the egg apparatus. This egg apparatus is made up of egg cell and synergid cells. Egg cell is present in the center, which is haploid. On each side of the egg cell, left and right, they present the synergid cells. In synergid cells, present some projections which are called filiform cell. यानी कि जो synergid cells हैं उनके अंदर filiform cells present होती है. अब यहां पर when the pollen grains reach on the stigma, so each pollen grain which reach to here has 2 layers, axine and intine. Axine is the outermost layer and intine is the innermost layer. Intine surround the nucleus and cytoplasm. Each pollen grain having the 2 cells, vegetative cells and generative cells. Vegetative cells are big in size and generative cell is small in size. जो vegetative cell है ये small होती है. अब यहाँ पर होता क्या है, that जो pollen grain है, it has the opening which are called the germ pore. जो opening है उन्हें germ pore कहते हैं. अब यहाँ पर जो ये generative nucleus है, when pollen grain reach to here, तो then this generative nucleus divide into 2 male gametes. जनरेटिव सेल्स जो है ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है. और यहां पर अब ये पोलर ग्रेन इन सम प्लांट्स
pollen grain are shed into two-celled stage, vegetative cell and generative cells. But in some plants, it is three-celled stage. ये पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में होते हैं. कुछ प्लांट्स के अंदर ये थ्री सेल्ड स्टेज में भी होते हैं. अब पोलन ट्यूब जो है जब डिसेंडेड होती है थ्रू द स्टाइल एंड द न्यू सेलस टिश्यू ऑफ द ओवरी, there is the secretion of pectinase enzyme and hydrolyzing enzyme. Pectinase enzyme and hydrolyzing enzyme which make the path for the descending of pollen tube. यानी पोलन ट्यूब के डिसेंड होने के लिए यहां पर there is the synthesis of pectinase enzyme and hydrolyze enzyme. ये दो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो कि इसको पाते हैं. एंड द पोलन ट्यूब रीच नियर द माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाती है. अब जब ये माइक्रोपाइल के पास पहुंचती है तो दैट दिस पोलन ट्यूब हैज टू जनरेटिव न्यूक्लियाई एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस. Vegetative nucleus or tube nucleus. Three nuclei are present in the pollen tube. This pollen tube is enter inside the ovule. Inside the ovule through the synergid cells. जो synergid cells हैं उनके थ्रू जाती है and fuse with the egg cell and make the zygote. पोलन ट्यूब आती है, ओव्यूल में जाती है with the help of synergid cells and there the egg cell fuse with the one male gamete or one generative nucleus, make the zygote and zygote is the diploid structure. zygote एक diploid structure है. तो that fusion of egg cell with the female gamete is called syngamy or fertilization. जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है और इस पूरी प्रोसेस को हम सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब ये जो सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस है दैट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई which represent the center of the ovule which is a diploid structure. So that second generative nucleus fuse with the second generative nucleus fuse with the polar nuclei and make the endosperm. It is called ट्रिपल फ्यूजन. इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. और जो एंडोस्पर्म बनता है दैट इज ए ट्रिप्लॉइड 3x. उसकी जो पोलैरिटी है वो 3x है. जाइगोट की 2x पोलैरिटी है. तो यहां पर इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और ये फ्यूज हो जाता है यहां पर. अब यहां पर क्या होता है जब ये सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, second generative nucleus fuse with the polar nuclei, then it make the primary endosperm nucleus. क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जो सेंट्रल सेल है उसको कहते हैं दैट बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहां पर बन जाती है. अब देखिए यहां पर सिंगैमी हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ. टू प्रोसेस आर अकर साइमल्टेनियसली. दिस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. समझ में बात क्या आता है? ये डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तो इसके बाद बाकी की यूनिट्स चलती है। अब कभी कभी क्या होता है इसमें आपके अगर लेबोरेटरी में हाउ यू वांट और हाउ कैन यू अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, इसमें आप यू टेक द पोलन ग्रेन और इन पोलन ग्रेन को आप स्लाइड पे रखिए एंड पुट द 10% सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन ऑन इट, और जब शुगर सॉल्यूशन रखेंगे आफ्टर 15 to 20 minutes that a tube is descended through the germ pore from the pollen grain. So that is called the germination of pollen grain. इसमें आपको 10% जो शुगर सॉल्यूशन जो है 10% कंसंट्रेशन वो रखा जाता है। अब होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद यहां देखिए एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है और फ्रूट्स बनते हैं। दीज आर द 4 थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये 4 चीजें यहां पे पढ़ती हैं, इनकी हम स्टडी यहां करेंगे। अब हमारे यहां पे एंडोस्पर्म की बात आ जाती है। एंडोस्पर्म जो बना है इट इज मेड आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना है। और ये जो एंडोस्पर्म है ये हमारा ट्रिप्लॉइड है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो पोलैरिटी है वो 3x है। 2x जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के है और 1x जो है सिंगल x जो है दैट इज ऑफ द मेल जनरेटिव न्यूक्लियस, 3x है। अब एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड द नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब जाइगोट बनता है उसका एम्ब्रियो बनता है तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप देखिए जब जाइगोट बनेगा उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो नरिशमेंट चाहिए तो ये काम एंडोस्पर्म करता है। अब यहां पर ये जो एंडोस्पर्म है ये आपके 3 टाइप के एंडोस्पर्म है, 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म है। सबसे पहला आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। इस सेलुलर एंडोस्पर्म है, इसके जो प्लांट्स में पाया जाता है बाल्सम, धतूरा एंड पेट्यूना। जो सेलुलर एंडोस्पर्म है इट इज स्टडी इन द बाल्सम, धतूरा एंड पेट्यूना, इनके अंदर इसकी स्टडी की गई है। इसमें क्या होता है जब जाइगोट बन जाता है जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है बट ईच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। जैसे सेल जो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होता है, अगर कैरियोकाइनेसिस होता तो साइटोकाइनेसिस वहां ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे ही ईच न्यूक्लियस इज डिवाइड हियर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल टू हियर। इसके बाद आता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है यहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ हियर इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस। सिर्फ यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहां पे नहीं होता। और ऑल द डिवाइड न्यूक्लियाई और ऑल द प्रोड्यूस न्यूक्लियाई आर अरेंज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है वीट में, राइस में और मीज, वीट, राइस एंड मीज, ये 2 टाइप के दिया के कोर्स में। थर्ड वन इज द हेलोबियल। हेलोबियल एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन द सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द न्यूक्लियर। इन हेलोबियल फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वॉल, यानी जब डिवीजन हुआ ये वॉल बन गई। लेटर बाद में जो डिवीजन होते हैं देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, दैट इज ए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हेलोबियल इज द इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन सेलुलर एंड द फ्री न्यूक्लियर। अब यहां पर आप देखिए कोकोनट जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो तरह के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स आर हियर। सबसे पहला जो अगर आप कोकोनट देखें उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको जो लिक्विड पार्ट है ये एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, यहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। और इसमें जो है ये जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर 1000 ऑफ न्यूक्लियाई। ये जो टेंडर कोकोनट है उसके अंदर यहां पर यू कैन सी द लिक्विड पार्ट, इट इज ऑल्सो एन एंडोस्पर्म, वो भी एक एंडोस्पर्म है जिसमें 1000 ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, वो फ्री न्यूक्लियर है। लेकिन दैट इन द कोकोनट देयर इज द व्हाइट कलर मास जिसे आप कलर कहते हैं, इट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में दो एंडोस्पर्म होते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म भी होता है और वहां पर आपका सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है। समझिए बात को यहां पर। तो कोकोनट इज ए एग्जांपल विच हैज द टू टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म हियर। इसके बाद आता है हमारा सीड। इसके बाद आता है हमारा सीड। अब जो सीड आता है, सीड जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल जो है डेवलप इनटू द सीड या राइपन ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड। राइपन ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड। इसको हम सीड कहते हैं, राइपन ओव्यूल को। दूसरी बात, सीड रिमेन इन डॉर्मेंट स्टेज, क्योंकि उसमें डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है। इसका एम्ब्रियो जब फंक्शनल होता है देन ऑल द फेवरेबल कंडीशंस आर प्रोवाइड। ऑक्सीजन मिल रही है, वाटर मिल रहा है, व्हेन दीज थिंग्स आर अवेलेबल तो सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके दैट्स द सीड स्टार्ट टू बिकम फंक्शनल। अदरवाइज जब तक सीड को पानी में नहीं डालेंगे, वी विल नॉट पुट इनटू द वाटर, देन इट विल नॉट कम इनटू द एक्टिव स्टेज, इट विल रिमेन द डॉर्मेंट स्टेज। तो सीड हमारा स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। अब देखिए सीड, देखिए सीड आपका मोनोकोट भी होता है, डाइकोट भी होता है। लास्ट ईयर यू स्टडी इन द मॉर्फोलॉजी। अब अगर आप सीड की बात करें, सीड में जो है यहां पर देयर आर टू लेयर्स। एक इनर लेयर है जिसे आप टैगमैन कह रहे हैं। इनर लेयर इज ए टैगमैन, इनर लेयर टैगमैन है। एंड आउटर लेयर इज टेस्टा। इनर लेयर इज टैगमैन, आउटर लेयर इज टेस्टा। दोनों को मिलाकर कहे तो ये सीड कोट बन जाता है विच इज हार्ड एंड प्रोटेक्टिव, जो हार्ड होता है और प्रोटेक्टिव होता है। दिस प्रोटेक्ट द सीड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अब सीड में देखिए यहां पर एक ओपनिंग है, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है ये यहां पर प्रेजेंट होती है। इस माइक्रोपाइल ओपनिंग के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है व्हेन यू पुट द सीड इनटू द वाटर एंड व्हेन वाटर एंटर सीड बिकम वाइबल। एंड अबाउट द माइक्रोपाइल देयर इज ए स्पॉट और स्कार। You can very easily see this spot or scar on the surface of the pea seed। जहां पे व्हाइट कलर का डॉट होता है, अगर आपने मटर देखिए तो उसे हम हाइलम कहते हैं। We call to that the हाइलम। हाइलम वो प्लेस है जहां पर कि फ्यूनिकल आकर अटैच होता है, where the funicle is attached। अब यहां पर अगर आप देखें टाइप्स ऑफ सीड्स, देखिए सीड में एंडोस्पर्म बना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म, देयर आर टू टाइप ऑफ द सीड, एंडोस्पर्मिक सीड
और एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड. Those seeds in which those seeds which have the storage of the endosperm, जिन सीड्स में एंडोस्पर्म का स्टोरेज होता है, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स. और एल्ब्यूमिनस, इसका एग्जांपल कास्टर है, कोकोनट है, ओनियन है, मेज है, व्हीट है, राइस है, बार्ले है. दे ऑल आर द एंडोस्पर्मिक सीड्स. ये सारे हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, परसिस्ट होता है. एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड. नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस, ये वो सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता. एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तब ये यहां पर एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक. इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं पी, ग्राउंडनट, ग्राम एंड बीन्स. मटर, ग्राउंडनट, ग्राम, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, इनमें स्टार्च नहीं होता. अब यहां पर एक टर्म आती है पेरिस्पर्म. देखिए पेरिस्पर्म का मतलब क्या हुआ. जो हमारा ओवरी होती है, उसके अंदर न्यूसेलस टिश्यू होता है. कुछ सीड्स में न्यूसेलस जो है कंज्यूम हो जाता है. But in some seeds or in few seeds, nucellus is not consumed. It persists throughout the life. It is called perisperm. इस कंडीशन को हम पेरिस्पर्म कहते हैं. ये क्या देखिए, कि अभी हमने पढ़े यहां पे कुछ एंडोस्पर्मिक सीड है, कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक सीड्स वो है जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट है, एंडोस्पर्म न्यूक्लिएटेड टिश्यू है. और नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे पी है, ग्राम है, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता. दैट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. लेकिन हमारे पास ब्लैक पेपर, कॉफी एंड बीट, दीज आर द एग्जांपल इन विच द न्यूसेलस परसिस्ट होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है. इसको कहते हैं पेरिस्पर्म. So this is about the fertilization, endosperm and seed formation. Tomorrow I will make the new video of the same chapter. अगर आपको टॉपिक्स पसंद आए हैं, वीडियो के कंटेंट पसंद आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्रिप्शन भी करें और कमेंट्स भी करें. थैंक यू फॉर दिस.